नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिप सफिया में। मैं हूं सफिया और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके एप्लीकेशंस को अपडेट करते वक्त डाउन टाइम को जीरो में रखने में मदद करता है और यह एक गेम चेंजर है, ट्रस्ट मी। लेकिन सबसे पहले सोचिए, आपके पास एक वेबसाइट है जो आपके ऑनलाइन पहचान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब इमेजिन करें कि आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी डाउन टाइम में, राइट? तो कुछ जादू सा लगता है ना? वेल, क्यूबरनेटिस की दुनिया में यह जादू नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सो मैं आपके साथ एक राज शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसा जो आपके वेबसाइट को अप टू डेट रखने में आपकी हेल्प करेगा बिना यूजर्स को वेट करवाए। आप बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट को आसान बना रहे हैं, जैसे आप अपने फेवरेट डिश ऑर्डर करते हैं। तो इन इंटरव्यूअर आस्क टू यू बेसिकली कि हाउ टू अचीव जीरो डाउन टाइम एप्लीकेशंस विद क्यूबरनेटिस। कैसे करोगे आप ये? लेट्स चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा हेडिंग यही है कि हाउ विल यू इंश्योर जीरो टाइम डाउन टाइम्स इन क्यूबरनेटिस। सो फर्स्ट मैं इसको पढ़ लेती हूँ, देन मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है? Ensuring zero downtime in Kubernetes involves implementing strategies to deploy and update applications without causing disruption to user traffic. Kubernetes provides several features to achieve this, and one common approach is through rolling updates. Let me explain this in easy language with a real-time example. So, first is rolling updates in Kubernetes. Just imagine you have a website running in a Kubernetes cluster and you want to update the version of your web application without causing any downtime. So here's how you can achieve this using rolling updates. First is replica sets. So in Kubernetes, you manage the number of instances of your applications using a concept called replica sets. A replica set ensures a specified number of replicas, it means instances, of your applications are running at all times. Second is deployment. So deployment in Kubernetes allow you to describe and manage the life cycle of your application. They are a higher level abstraction that manage replica set, right? This is basically a YML file, right? Here is right API version is this kind deployment यहाँ पे लिखा हुआ है ना। मैंने आपको इससे पहले वाले लैब में पॉड का बताया था, बट ये डिप्लॉयमेंट है। तो इसके बाद आने वाले टाइम में हम लोग डिप्लॉयमेंट का भी देखेंगे लैब। ठीक है, मेरा डेटा ये है, नेम बेसिकली ये है आपका, रेप्लिका कितना है यहाँ पे 3 है। ठीक है, सिलेक्टर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में धीरे धीरे बात करेंगे। लेबल्स क्या होता है, ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो इन दिस एग्जांपल वी हैव अ डिप्लॉयमेंट मैनेजिंग अ रेप्लिका शीट विद 3 रेप्लिकास ऑफ आवर वेब एप्लीकेशन। बेसिकली दिस इज वर्जन 1 के लिए ये है। ठीक है, फिर अपडेटिंग द एप्लीकेशन। अब इस अपडेट इस ये जो एप्लीकेशन इसको आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। तो लेट्स से यू हैव अ न्यू वर्जन ऑफ योर वेब एप्लीकेशन इज वर्जन 2 and that you want to deploy without downtime. So you update your deployment configuration like this. Okay, so fourth is basically rolling update process. So when you apply the updated deployment configurations, Kubernetes intelligently manage the transition from version 1 to version 2 by gradually replacing instances. राइट एंड अगर आपको अभी ये जो मैं कह रही हूँ नहीं समझ आ रहा है, तो मैं हिंदी में समझाऊंगी अभी आपको, वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो it starts by creating new replica with the update version 2. So once the replica are ready and healthy, it gradually scales down the old replica, it means version 1. So this process is gradual and ensures that there is always a sufficient number of healthy instances running at any point during the update. There are no sudden disruption in services. Get it?
So, zero downtime, right? So, next is zero downtime. So, as Kubernetes manage the rolling updates, user continue to access your website without experiencing downtime, and the transition from one version to another is seamless and gradual. So by utilizing concepts like deployments and replica sets, Kubernetes helps you achieve zero downtime during updates, ensuring a smooth user experience while keeping your applications up to date. अब तो मैंने यहाँ सारी बातें कर ली और इतना इजी लिखा हुआ है ही कि लोगों को समझ आ जाएगा, बट मेरे को तसल्ली नहीं होता है। मैं फिर भी आपको ये चीज एक नॉर्मल, एक इजी लैंग्वेज में एक बताऊंगी आपको, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग जो है कि ऐसा आप सोचिए कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है जिसमें आप अपनी फेवरेट डिश सर्व करते हैं और हर दिन आपको लंच टाइम में अपने कस्टमर के लिए और बेहतर वर्जन ऑफ योर डिश सर्व करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि जब आप न्यू डिश इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी लोगों को खाना जो है वो मिलता रहे बिना कोई इंटरप्शन हुए, ठीक है? सो ये चीज होती है क्यूबरनेटिस में जब आप जीरो डाउन टाइम चाहते हैं। गेट इट? सो फर्स्ट इज रेप्लिका सेट। सो आप ऐसा सोचिए कि हर एक डिश को सर्व करने के लिए आपके पास एक सेट ऑफ शेफ, राइट, होता है जो एक जैसा खाना बना सकता है। सो इस सेट को हम रेप्लिका सेट कहते हैं। समझ में आ रहा है? डिप्लॉयमेंट। तो ऐसा सोचिए कि आप हर दिन नए और बेहतर डिशेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और ये डिप्लॉयमेंट्स के रूप में आता है। और डिप्लॉयमेंट आपको यह बताता है कि कितने रेप्लिकास यानी कि शेफ आपके रेस्टोरेंट में होना चाहिए और कैसे वो काम करेंगे। तो ये चीज हम लोगों को बताता है डिप्लॉयमेंट, ठीक है? थर्ड है हमारा अपडेटिंग द एप्लीकेशन। तो आप ऐसा समझो कि एंड उससे पहले कि ये वाला जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट है जो है और जो बेसिकली बताता है कि 3 रेप्लिकास यानी कि सेफ जो है हमेशा अवेलेबल होने चाहिए और अभी वो वर्जन 1 का जो है वो डिस बना रहे हैं, ठीक है? थर्ड वन इज अपडेटिंग द एप्लीकेशंस। तो आपको एक नया डिश यानी कि V2 इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? और आप अपने डिप्लॉयमेंट को अपडेट भी करना चाहते हैं। समझ आ रहा है? देन आप क्या है उसका यहाँ पे देख रहे हो कि फोर्थ है हमारा रोलिंग अपडेट प्रोसेस। देन आप क्या करोगे इस कंडीशन में? तो बेसिकली जब आप नए कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करते हैं, क्यूबरनेटिस इंटेलिजेंट तौर पर पुराने रेप्लिकास को नए रेप्लिका के साथ ग्रेजुअली रिप्लेस करता है। पहले नए रेप्लिका यानी कि V2 क्रिएट होते हैं और जब नए रेप्लिका तैयार और ठीक होते हैं तो पुराने रेप्लिकास को धीरे धीरे स्केल डाउन किया जाता है और यह प्रोसेस धीरे धीरे होता है ताकि हमेशा सफिशिएंट नंबर ऑफ सेफ्स रेडी रहे और कस्टमर्स को बिना इंटरप्शन के खाना मिलता रहे, ठीक है? और इस तरीके से जब भी आप नया डिश इंट्रोड्यूस करते हैं तो कस्टमर को बिना किसी इंटरप्शन के खाना मिलता रहता है और वर्जन 1 से वर्जन 2 में ट्रांजिशन धीरे धीरे होता है जिससे कोई सडन डिस्ट्रप्शन ना हो, ठीक है? और क्यूबरनेटिस के कंसेप्ट जैसे कि डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट का यूज करके आप अपने एप्लीकेशंस को अपडेट करते वक्त जीरो डाउन टाइम्स बेसिकली अचीव कर सकते हैं जिससे आपके यूजर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके और आपके एप्लीकेशंस हमेशा अपडेट रहे, ठीक है? तो दोस्तों आज काफी मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है और याद रहे टेक दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन हम साथ मिलकर उसे आसान बेसिकली बनाएंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।